Hello everyone, I hope all of you are doing well. I welcome you all to the fifth webinar of the series on the topic of IP laws in Pakistan. My name is Ahmed Gilani and I am an associate at Katana's Law Chamber. I will be moderating today's session. Before we start, I would like to point out that the firm will provide certificates to all the attendees after the last session on IP laws. To those of you asking for certificates after every session, we cannot provide a separate certificate for every session. So, continuing to the session, today is going to be a rather interesting one as we have two speakers, both of whom are experts of the relevant fields, and both are above any introduction. Our first speaker is Mr. Ali Salimi, who did his LLM in IP law from UC Berkeley. Since today's topic concerns alternative dispute resolution in IP laws in Pakistan, we thought of inviting Mr. Malik Anik Ali Khatana, who has a great expertise in. Sir Anik did his LLM in International Dispute Resolution from Queen Mary University, London. Welcome, Sir Ali Anik, and thank you for taking out time today. If any one of you would like to say a few before the session, Sir Anik. Hello everyone. My name is Anik Katana, and I'm the practicing High Court lawyer as well as I'm the managing partner of Katana's Law Chamber. I would like to formally welcome all of you who have been attending the events. This is the fifth session of the series, and I hope that you enjoyed the previous session as well. Today's session is very close to my heart because I am rigorously working to promote the awareness of ADR in Pakistan. I personally studied international dispute resolution from Queen Mary University of London, and we are also trying to uh, bring this concept to our local courts as well. So we are able to resolve the dispute between the parties most effectively. Today's topic is very interesting because we are going to find the provision from IPO law, and we are going to discuss that how the IPO issues can be resolved through alternative dispute resolution, where you don't have to wait for the court order for years and years. I hope this session is going to be very useful and interesting for you because I have my colleague, Mr. Ali Salimi, with me, and I'm very much excited to share my thoughts with him. I hope that all of you enjoy the session as much as we are going to do that. But if you have any question, please raise your hand and we don't mind to stop and answer your question instantly. So welcome everyone once again. Thank you, Jay. Sir Ali, would you like to say I'm so very excited to share this digital space with you, ladies and gentlemen, over here. Mr. Gilani के साथ मैंने ये series already. It's, I guess, the fourth part of the series. I'm sharing the digital space with him, and it has been very productive for me. I hope it has been as productive for the participants who are attending it over here, and I'm really looking forward कि मैं मिस्टर खटाना अनीक खटाना का भी एक्सपीरियंस शेयर करूं और हम can everyone turn their mics off, please? Is everyone with us? Yes, Ahmed, we can hear you. I think Sir Ali has some connectivity issues. Should we wait for him, sir? We can commence the session and you can join us in between. Okay, so sir, my first question is for you. Before coming to the domestic legislations that govern ADR in Pakistan,
What are the common methods of ADR that could be used in resolving IP disputes in Pakistan or any disputes to be? Emma, thank you very much for this question. And I personally believe that if you have to explore this topic in detail, that what ADR is, then you need to understand the basic of it. Sorry. And it's not only arbitration, but it is set of or mode of dispute resolution methods that helps you to resolve the matter outside the court. So when we Okay. talk about ADR, ADR has most popularly three mechanisms to resolve the dispute. Now we have fourth one as well. The first one that we very commonly talk about is mediation. Then we talk about arbitration. We have negotiation and reconciliation as well. Right, sir. These are different methods to resolve the dispute. Right. Uh, in Pakistan, if you generally talk about that which method is adopted very easily and commonly in Pakistan, that is the mediation. Why? Because if we look at the history of mediation or arbitration or maybe this law ADR around the globe, then I would like to tell my audience that it starts from the Islamic era because Islamic Sharia Panchayat is one of the most popular setting which used to help people to resolve the dispute. Right, And sir. so if I may add, Hazur, Prophet peace be upon him, he's the one who also used this mechanism to resolve one of the very serious and major disputes at that time. But आपका later, सुलह देबिया की तरफ अली yes, साहब आप absolutely, जी 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 absolutely, absolutely. प्लीज कंटिन्यू So when we go further, we see that in different countries, Muslim countries, लोग ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि इस्लामी शरी पंचायत में जाके अपने इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो हमारे बलूचिस्तान और सिंध में अभी भी आपको बहुत सारी ऐसी पंचायत मिलती हैं। Yes, अ, sir. और वो पंचायत जो है वो ऑपरेशनल भी हैं। लेकिन अब क्वेश्चन वहां पर आता है कि जो वो लोग चीज डिसाइड करते हैं वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बनती है कि नहीं, वो जजमेंट बनती है कि नहीं, क्या उसकी कोई लीगल बैकिंग है कि नहीं, क्योंकि अगर उसकी लीगल बैकिंग नहीं है तो लोग उस चीज का एहतराम नहीं करेंगे। जब जैसे ही ये सेशन आगे जाएगा एंड if you ask me more question, I'll just try to go into the more detail of it. But Right. right now for my audience I would like to just tell them कि जो basic है इसकी वो है that you need to understand that there are four mechanism that they need to remember कि जो यूज हो सकते हैं alternative dispute resolution में, that is mediation, arbitration, reconciliation and negotiation. So I hope I have answered your question. Yes, sir, you actually did. So, Sir Ali, my next question is for you. Sir, there are numerous laws in Pakistan which cover almost every aspect and area of intellectual property. There's the Copyrights Ordinance, the Patents Ordinance, the Designs Act, etc. How do these laws safeguard the IP rights of individuals? What जी mechanisms do they offer? जी इसमें एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी है, उसको मैं आईपी एडीआर से थोड़ा सा रिलेट करूंगा। जी मिस्टर गिलानी, हम ऑलरेडी इसको काफी हद तक कवर तो कर चुके हैं, बट मैं इन शॉर्ट आपका जो सवाल है मैं इसको एड्रेस भी करता हूँ। देखिए पाकिस्तान में ये जो सारे आपके जो राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिस पे देर आर मल्टीपल लेजिस्लेशंस, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेफगार्ड तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ आप काइंडली एक चीज और भी नोट करें कि हमारी ना कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं। देखें दुनिया में इट्स जी आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो आपका कमर्शियल जो आपकी एडवांटेज है उसको सेफगार्ड करते हैं, आपके कमर्शियल राइट्स को सेफगार्ड करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्चुअल जो अरेंजमेंट्स हैं उसको सेफगार्ड करते हैं, ताकि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस उसको कोई ब्रीच ना कर सके। ठीक है, सो आप डू रियलाइज कि इन दिस ग्लोबल इकोनॉमी आप इसको सिर्फ पाकिस्तान के पहराए से यू कांट टेक इट एंड ऑब्जर्व इट थ्रू द लेंस ऑफ द लोकल लॉज ओनली। आपको जिस तरह के मैंने लास्ट कुछ वेबिनार्स में भी बताया कि हमारी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, एग्रीमेंट्स होती हैं, हम कुछ ट्रीटीज के हम वी आर सिग्नेटरीज टू दैट, और उसके एवज हम फिर एक लोकल
लॉज पास करते हैं और हम फिर उन चीज़ों को प्रोटेक्शन देते हैं। उसी एस्पेक्ट में जो आपने भी जिन कवानीन का बताया और हम अपने वेबिनार्स में वो कवर भी कर रहे हैं, उसमें रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं जो इन चीज़ों को सेफ गार्ड करती हैं। सो टेक्निकली लूजली स्पीकिंग वो हैं क्या, वो हम वेबिनार्स में कवर कर चुके हैं, बट आई ट्राई टू कवर दोज समराली ओवर हियर। उसमें से देखिए, एक तो आपका कॉपीराइट प्रोटेक्शन है जो कि आपके आर्टिस्टिक वर्क्स को प्रोटेक्ट करती है, ख्वाह वो लिटरेरी फॉर्म में हो, ख्वाह वो वीडियो के फॉर्म में हो, म्यूजिक फॉर्म में हो। ठीक है, वो तो आपके लिटरेरी वर्क को, उसके आइडिया के एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नॉट द आइडिया इटसेल्फ बट द एक्सप्रेशन ऑफ दोज आर्टिस्टिक आइडियाज। फिर आपका आ जाता है सर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में बेसिकली आपका जो लोगो है उसको प्रोटेक्शन होती है, जो आपकी ट्रेड लोगो या नेम होता है उसका साइट स्टाइल डिजाइन एंड फॉन्ट, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। फिर आपका मेनली आ जाता है पैटेंट लॉ आ जाता है, जिसमें पैटेंट ऑर्डिनेंस और पैटेंट के रूल्स हैं। वो बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजिकल या प्रोसीजरल एडवांसमेंट आप किसी भी ऑलरेडी प्रोसीजर में या कोई नई नॉवल आप इजाद करते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑर्डिनेंस है, जो आपकी कोई जो डिजाइन है, पैटर्न्स हैं, वो उसको सेफ गार्ड करता है। फिर रिसेंटली पाकिस्तान में, अगेन ये मैं आपके जब सवाल हम एडीआर को थोड़ा सा अनीक भाई थोड़ा सा टच अपॉन करेंगे, सो फिर उसके बाद आई टेक ओवर और मैं थोड़ा सा आपको आईपीआर के हवाले से भी बताऊंगा। और रिसेंटली पाकिस्तान की इकोनॉमी उस पर बहुत डिपेंडेंट है, वो है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। वो बेसिकली क्या करता है कि आपकी किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर कोई चीज पाई जाती है, उसको सेफ गार्ड किया जाता है कि ये सिर्फ चीज या प्रोडक्ट इसी इलाके के स्पेसिफिक है। इसमें हम बासमती राइस का, पाकिस्तान का जो मैटर है इंटरनेशनली which has been agitated with India, हम उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। Right, I sir. hope I answered your question. Sir, keeping on with my previous question, can you tell us about the TRIPS agreement, the Berne Convention, Paris Convention, जी जी and जी specifically what guidelines do these treaties give with respect to resolution of disputes and intellectual property? जी जी जी। देखें, सबसे पहले तो मिस्टर गिलानी हमें We are ये talking समझना about the होगा। dispute resolution mechanisms. जी जी जी, बिल्कुल ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से। सो सबसे पहले तो व्यूअर्स हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कन्वेंशंस हैं क्यों, एंड व्हाट इज द ओवरआर्चिंग बॉडी which controls this in terms of international arbitration under intellectual property rights. So देखिए, ये आपकी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जिसमें से बर्नी कन्वेंशन जो है वो बेसिकली डील करती है कॉपीराइट से। और सबसे जो पुरानी 1811 की शायद ट्रीटी है, मैंने कवर भी किया हुआ है, यू ऑल्सो हैव द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, वो है पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन ने इंटरनेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, उसमें पैटेंट और कॉपीराइट एक मेन, उसके अंडर ही सब कुछ एट दैट टाइम डील होता था, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स। सो उनको स्ट्रीमलाइन और यूनिफाई करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन में। फिर आपके पास बर्नी कन्वेंशन आया, जिसमें यूनिवर्सल कॉपीराइट प्रोटेक्शन दी गई आपकी आइडिया के एक्सप्रेशन को। अगेन वो लिटरेरी फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियोग्राफिक फॉर्म में भी हो सकती है, फोटोग्राफी पिक्टोरियल फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एंड इन दिस डिजिटल एज आपकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी कोडिंग के हवाले से भी हो सकती है इन इन द करंट इकोनॉमिकल एंड सोशल वैल्यू। सो वो उन चीज़ों को कवर करती है। इसमें जो मेन पैराडाइम शिफ्ट था, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, वो मैं आपको दोबारा इधर रिपीट कर देता हूँ। वो ट्रिप्स ने, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो ट्रीटी थी, जो 1990s में फर्स्ट टाइम आई थी, बट उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत दफा रिन्यू और इस पे अमेंडमेंट्स बेसिकली हो चुकी हुई हैं। सो इन इट्स करंट फॉर्म जो आपकी ट्रिप्स की कमिटमेंट है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, उसके एवज पाकिस्तान में देर आर लैंडमार्क शिफ्ट्स। और वो लैंडमार्क शिफ्ट्स क्या हैं? पहले तो जब आप ट्रिप्स के सिग्नेटरी थे तो क्या हुआ था कि आपका ट्रेडमार्क एक्ट जो पुराने वाला था 1940 वाला, आपका कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1960 वाला, आपका पैटर्न एंड डिजाइन पुराने वाला 1911 वाला, वो आपकी पुरानी चीजें वैसी ही एज ओल्ड चल रही थी। लेकिन जब आप ट्रिप्स की रेगुलेशंस के अंदर आया, आपने जब यू बिकेम द सिग्नेटरी ऑफ दोस ट्रीटी, सो पाकिस्तान हैड टू fashion its laws according to the international global society, ताकि हमें एट पार देखा जाए with the international players.
सो अगेन पोस्ट ट्रिप्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि आपका कॉपीराइट के ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स हुई, आपके इंटीग्रेटेड सर्किट ऑर्डिनेंस में 2000 जो है वो आया, आपका ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2000 वाला है वो आया, आपका पैटेंट ऑर्डिनेंस 2000 है उसमें चेंजेस आई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिप्स की बाद एंड अगेन वो मैड्रिड प्रोटोकॉल्स में भी थोड़ा सा उसको रिफ्लेक्ट किया गया, वो ये था कि आपकी पाकिस्तान की जो ट्रेडमार्क की जो फाइलिंग है वो इंटरनेशनली भी अब आप पाकिस्तान में बैठे बैठे आप कर सकते हो, स्पेशली इन द यूरोपियन मार्केट। आप पाकिस्तान में बैठे अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हो, सो आप वो एट पार वो यूरोप में एक थ्रू सिंगल फाइलिंग सिस्टम आप वो भी कर सकते हो। सो ये कुछ ठीक ठाक लैंडमार्क चेंजेस हैं। ठीक है, और अगेन इसको जो डील करता है, जो इदारा डील करता है, जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है इंटरनेशनली, जो आपने मेरे से मेन जो थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड आज का जो सेमिनार है वेबिनार है वो ये है कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, उसकी एक अपनी सीट है आर्बिट्रेशन की जो सिंगापुर में बैठती है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सीट्स ऑफ आर्बिट्रेशन, इफ आई मे ऐड। सो उधर अगर आपकी कोई इंटरनेशनल कोई आपकी अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपने आपस में अगर किसी मुल्क ने मुल्क के साथ या किसी बिजनेस ने किसी B2B बिजनेस ने आपस में कुछ डील्स किए हैं, सो उसमें सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो क्या रखते हैं, वो अगेन वो अनीक साहब भी इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। बट जो इदारा है जो इसको गवर्न करता है जिनके पास एक्सपर्टीज हैं वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है। ठीक है, सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन ओवर हियर। We'll get back to WIPO in a while. Sir Anik, we have noticed that all of the laws that Sir Ali very kindly explained, these do not explicitly mention the use of ADR. How can we introduce ADR methods for IP-related disputes while staying in line with the Arbitration Act 1940, which is, I think, the governing body of arbitration in Pakistan? Thank you very much, Evans, for this question. Before I address this question, I would like to tell the audience and explain it that what Mr. Ali and I am trying to do right now. So he is discussing the act and all the law related to IPO. He's just trying to make you understand the foundation of IPO and how it works in Pakistan and abroad that we have done in the previous series. But right now, what we are trying to do is we're just trying to tell you that if there is a dispute, can you resolve it through ADR? So I'm just trying to focus on the law which is available to resolve this matter. But before we talk about that, we need to understand that how can we resolve the matter in the future by doing just one task, and that is very important. So if you are drafting a contract or an agreement, it is very important that you need to have a dispute resolution clause in it. Because if that is absent, you would not be able to resolve, or maybe you will have difficulties to choose the method of resolving the dispute resolution, to resolving the dispute. And secondly, as my colleague Mr. Ali mentioned, that if you have to resolve the dispute, you need to understand that there are different ways. And when you get an award, because in arbitration, what happens that you have to write it in your agreement that which seat or which law you decide that which is going to resolve your dispute. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या अग्रीमेंट के अंदर वो क्लॉजेस मौजूद नहीं है, आपने नहीं लिखा हुआ कि आपकी सीट कौन सी है, आपके आर्बिट्रेटर्स कौन से हैं, आपका कौन सा कानून लागू होगा, कौन से रूल्स होंगे, क्या ये एडमिनिस्टर होगी किसी सेंटर से या आप इसको एड हॉक करेंगे। एड हॉक का मतलब है कि आप इसको खुद से करेंगे या आप इसको किसी आर्बिट्रेशन सेंटर को देंगे, आप लंदन आर्बिट्रेशन सेंटर को देंगे, सिंगापुर को देंगे, न्यूयॉर्क देंगे, दुबई, जिस जगह भी आप देंगे। अगर ये चीजें वहां पर मेंशन नहीं है तो जब आपका डिस्प्यूट होगा आपको सबसे बड़ा मसला ये ही आएगा कि आप इसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसका मैकेनिज्म आपके पास नहीं होगा। विच इज वाई इट इज एडवाइजेबल दैट व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर दैट्स फॉर लोकल क्लाइंट और मे बी दैट्स फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट, always put ADR clause in it because that always helps you to resolve the matter when there is a dispute. Secondly, now there are two branches if you would like to understand that what ADR is.
ADR के अंदर आर्बिट्रेशन पे अगर हम एम्फसाइज करें तो देयर इज वन लोकल आर्बिट्रेशन एंड द अदर वन इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। लोकल आर्बिट्रेशन के अंदर जो आपने अभी क्वेश्चन किया है मेरे से, एक्ट 1940 की, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को आपने मेंशन किया। अब 1940 के अंदर अगर आपने अपना रिजॉल्व करना है डिस्प्यूट, तो आपके अग्रीमेंट के अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। बिकॉज जो आपका आर्बिट्रेटर अवार्ड देगा, और फॉर द पीपल जिनको आइडिया नहीं है कि ये पूरी की पूरी फील्ड क्या है, फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग आई वुड लाइक टू टेल देम कि उसके बाद आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो सी हैं वो कोर्ट में नहीं होती, वो आपकी प्राइवेट स्पेस में होगी, जिसके जिसके अंदर दो आर्बिट्रेटर्स होंगे, और अगर दोनों आर्बिट्रेटर एक कंसेंसस में नहीं आते तो देन अंपायर जो सा है वो अपॉइंट होगा, और उसका जो फैसला होगा दैट विल बिकम एन अवार्ड। और वो अवार्ड जो है आपकी लोकल कोर्ट के अंदर इन्फोर्स होता है एज जजमेंट ऑफ दैट कोर्ट। But when you talk about the international law, international arbitration में when you get an award from the arbitrator, जहां पर आप इशू अपना रिजॉल्व कर रहे हैं किसी थर्ड सेंटर में जाके, whether that's in London, Singapore or anywhere in the world, जहां जहां पर भी आपने सेंटर्स को या आपने एड हॉक आर्बिट्रेशन की है, तो आपको पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में अवार्ड को इन्फोर्स होना है, तो फिर आपको पाकिस्तान में आके उसको कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, ताकि हाई कोर्ट में उसको हाई कोर्ट का ऑर्डर माना जाए। और जो कानून Sir, we can't hear you. अनीक साहब, आपकी आवाज वी कैन कांट यू हियर हियर मी यू। नाउ? जी जी, अब प्लीज कंटिन्यू। आप अवार्ड का बता रहे थे हाई कोर्ट, So, सो प्लीज so when कंटिन्यू। you so when you get an award, जो आपकी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से आप अवार्ड लेते हैं, अवार्ड लेने के बाद ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें मिल जाएंगी। यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड यू हैव टू गेट इट इन्फोर्स्ड। इन्फोर्समेंट के लिए जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून है, वो आपका न्यूयॉर्क कन्वेंशन को हमने इनकॉर्पोरेट करके एक्ट बनाया 2011 का। उस Right. 2011 के अंदर जो जुरिस्डिक्शन है वो अब हाई कोर्ट को दी गई है। और पहले ये होता था कि सिविल कोर्ट में आपको अवार्ड लेकर जाते थे, बहुत सारे जजेस को इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि इन्फोर्समेंट में भी पाकिस्तान में 5-5, 10-10 साल लग जाते थे। इस इफ आई मे इंटरजेक्ट, अनीक साहब, इसमें इसमें मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट भी है, हम वो भी शेयर करेंगे, वो भी समझने में लोगों को आसानी होगी। जी प्लीज कंटिन्यू, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। तो वो जब आप अवार्ड लेके पाकिस्तान में आएंगे, आप फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में अब आपको जो दैट टाइम वी गिव टू आवर क्लाइंट्स, दैट इज 2 years to 4 years, और Right. फिर वो अवार्ड इन्फोर्स होगा और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। बट लकीली, इफ वी if I may talk about the mediation as well, because now we are talking about the enforcement and process of the court. So यहाँ पर जो जजेस का इस वक्त माइंड सेट है हाई कोर्ट के अंदर, स्पेशली रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, दे हैव जो भी मेरे कॉलीग मिस्टर अली ने मेंशन किया, मंसूर अली शाह साहब की जो रीसेंट जजमेंट आई है, वो प्रो बायस इन्फोर्समेंट पे, कि जजेस जो उनसी है वो सबसे पहली कोशिश ये करेंगे कि इस अवार्ड को जल्दी से जल्दी इन्फोर्स करें, इसकी टेक्निकलिटीज में ना जाएं, इसको दोबारा रीओपन ना करें अगर इसमें कोई मेजर मसला नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट। और इसकी जो मेन रीजन है, जो डॉक्ट्राइन है इसका, एंथ्रोपोलॉजी है, वो उसके पीछे ये है कि यू हैव टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉरेन क्लाइंट, बिकॉज फॉरेन क्लाइंट इज द वन, सॉरी, फॉरेन इन्वेस्टर, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर इज द वन जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और जब उसको ये पता हो कि आपके मुल्क में अगर वो अवार्ड लेकर आता है और वो इन्फोर्स होने में उसको इतने साल लग जाएंगे, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर इतना बड़ा डिले जो है वो आपका डे बाय डे एक्यूमुलेट होता रहता है, आपका लॉस। सो इन ऑर्डर टू curtail दैट, वो पाकिस्तान के अंदर अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एंड इफ यू वुड लाइक टू रीड द जजमेंट, we'll share that in the group as well. I know your question was directed to the local law, but it was very important for me to एग्जैक्टली। tell everybody कि फॉरेन अवार्ड को भी हम लोकल कोर्ट्स के अंदर इन्फोर्स कैसे करते हैं। बल्कि इसमें एक इशू भी था, मंसूर अली शाह साहब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया।
कि आप 19 देयर वाज एक्चुअली एन इशू इन इट कि 1940 के तहत किया जाएगा, इंटरनेशनल के तहत किया जाएगा इन 2011 वाले एक्ट के थ्रू। एंड ही एग्जैक्टली लाइक मिस्टर नीक व्हाट ही सेड, ये बात मंसूर अली शाह साहब ने बड़े तरीके से और उस पर डिबेट एंड ही उन्होंने कर दिया कि अब वो इंटरनेशनल जो इन्फोर्समेंट होगी उसको फौकियत और उसको एमिनेंस दी जाएगी। Right, sir. एक So, चीज और, एक रिकरिंग क्वेश्चन है, वाइल अनीक साहब वाज एक्सप्लेनिंग इट वेरी एलोक्वेंटली, कुछ हजरात को ना ये आर्बिट्रेशन का जो मैकेनिज्म है ना वो समझने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। इन शॉर्ट अनीक साहब अगर आप बताना चाहें कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि कुछ लोगों को Sure, शायद sure, sure. उनके इल्म में नहीं है कि एडीआर होता क्या है, इफ यू में। Okay. बाजवा So साहब आपके लिए ये आंसर है, आप पूछ रहे थे yeah, सवाल sure. जी। So I'll just make it very simple for everyone. So let's just start with the mediation, right? So mediation is something where both the parties decide कि एक हमारे दरमियान बंदा बैठेगा whom we call in legal language a mediator, और मीडिएटर बनने के लिए फिर आपको एक्रीडेटेड कोर्सेज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसको सादा जुबान में समझने की कोशिश करें तो दो पार्टीज के बीच में एक इंसान बैठेगा जो दोनों का मसला सुनेगा, उसके बाद प्रपोजल्स बनाएगा कि किस तरह इस मसले को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और वो प्रपोजल्स में से जो दोनों पार्टी कंसेंट देंगी, दोनों के कंसेंसस के साथ एक सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो जाएगा और उनका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ये है मीडिएशन। अब नाउ वी टॉक अबाउट आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के लिए प्रॉपरली अगर आप आर्बिट्रेशन का एक्ट उठा के देखें तो यू विल रियलाइज कि उसका पूरा एक प्रोसीजर दिया गया है कि आर्बिट्रेशन के अंदर दोनों पार्टीज के लॉयर्स भी हैं। उसके बाद आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसकी सेटिंग के अंदर हर पार्टी का अपना आर्बिट्रेटर भी है, या वो एक आर्बिट्रेटर भी रख सकते हैं, सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है। उसके अलावा उस सारी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्ट्रार भी है। और अगर दोनों पार्टीज कंसेंसस में नहीं जाती हैं और अब आपने फाइनल अवार्ड लेना है, सो यू हैव, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, आपको एम्पायर चाहिए होगा। सो दोनों पार्टीज नाम सजेस्ट करेंगी और वो एम्पायर जो सा है अपना अवार्ड देगा, और वो अवार्ड जाके फिर कोर्ट के अंदर आप फाइल करेंगे। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। अब मीडिएशन के अंदर जो वो बंदा है वो आपको डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो आपको आपका रिजॉल्व करने की मैटर कोशिश कर रहा है। हाउएवर आर्बिट्रेशन के अंदर प्रोसीडिंग्स इंटायरली डिफरेंट है, उसमें दोनों पार्टीज ही मिलके कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पैनल के अंदर आपके लॉयर्स जो हैं प्रॉपर सबमिशंस कर रहे हैं, वहां पर इनफॉर्मल सेटिंग है। अब हम second question that I can see on my screen, that is through international seats of arbitration like WIPO. Yes, that's a very good question. So before this webinar, I was preparing for it. मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था तो मैंने आज बहुत एक अच्छी चीज देखी है, and that was कि अगर if you go on WIPO's website, now they give you alternative dispute resolution mechanism, और उस मैकेनिज्म के लिए प्रॉपर एक उन्होंने वेबसाइट बनाई है। और वेबसाइट पे जो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज लगी वो ये थी कि उन्होंने वहां पर एडीआर क्लॉज को बनाने के लिए क्रिएट का एक बटन दिया है और कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आप अपने रिजॉल्व कैसे करना चाहते हैं इस मैटर को। और अगर आप उन मल्टीपल क्वेश्चंस को आंसर करें तो वो एंड पे आपके लिए एक पूरा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्लॉज तैयार करके आपको दे देते हैं। तो आईपीओ के अंडर भी अगर आप उनका जो सेंटर है अगर आप उनके थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो यू हैव टू पुट इट इन द कॉन्ट्रैक्ट। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वट ऑलरेडी मिस्टर अली सलीमी एक्सप्लेन्ड कि अगर वाइपो में आपने फाइलिंग करते हैं और ऑब्जेक्शन आती है या आपकी ऑन जो हेयरिंग होती है, जैसे पाकिस्तान लोकल कोर्ट, लोकल भी हमें जाना पड़ता है आईपीओ, वहां पर रजिस्ट्रार के सामने उसको कन्विंस करना पड़ता है, हेयरिंग्स होती हैं और उसके बाद जाके फिर ग्रांट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप उनकी वेबसाइट पे देखें तो इन्होंने ऑनलाइन हेयरिंग दी हुई है। एंड व्हेन वी वर मिस्टर अली एंड आई वाज प्रिपेयरिंग इट, तो वी फाउंड आउट कि दुनिया के अंदर सबसे पहले जो ऑनलाइन हेयरिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था वो वाइपो के अंदर ही दिया गया था। सो आई आई होप आई हैव गिवन यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड आई आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जी जी। so, Sir Anik, in your experience, have you come across any case containing ADR clause that you have dealt with and to what extent do the specialized IP tribunals play a role in promotion of ADR for IP related disputes in Pakistan? This question specifically refers to IP related case.
Ahmed, you have asked me such an interesting question because I'm going to discuss a case that you are assisting me right now. So uh, in order to make you understand that how it works, I think I'm going to discuss this practical case of mine with you that might help you to understand कि IP law के अंदर भी ADR किस तरह काम कर सकता है. So what happened was there was this client, he came to us and they were partnered. They had this agreement and they put this in their agreement कि अगर हमारा कोई issue होगा तो हम arbitration से इसको resolve करेंगे. और हमारे क्लाइंट को कोर्ट से नोटिस आए कि पासिंग ऑफ जो है उसके खिलाफ आईपीओ ट्राइब्यूनल में फाइल कर दिया गया. सो व्हेन वी वेंट देयर और हमने कोशिश की कि हम रिकॉर्ड भी लें और देखें कि सिमिलैरिटीज क्या हैं उसके ट्रेडमार्क में और हमारे ट्रेडमार्क में. सो वी गॉट टू नो कि जो हमारा ट्रेडमार्क था उसने कोर्ट के अंदर ये चीज की फाइलिंग की हुई थी कि हम इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, ये उसका है और डिफरेंसेस उसमें ये हैं, सिमिलर लगता है जिसकी वजह से उसके बिजनेस को लॉस हो रहा है. लेकिन इंटरेस्टिंगली उसने ट्रेडमार्क जो दोनों है दोनों की फाइलिंग की हुई थी और कोर्ट के अंदर वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कि ये इसके ओनर्स रिस्पोंडेंट्स हैं और ये लोग हैं जो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं. अब हमने सबसे पहले जब कोर्ट में गए तो हमने सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट हमने उसके अंडर एप्लीकेशन कोर्ट में दी और कहा कि ये मैटर तो कोर्ट में नहीं आ सकता बिकॉज आर्बिट्रेशन क्लॉज है और इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा आउटसाइड द कोर्ट और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं. आई वाज शॉक्ड टू सी the honorable judge, he did not take that application seriously. हमने उसके ऊपर आर्गुमेंट्स किए, डॉक्ट्रिन समझाया, अथॉरिटीज समझाई. प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है? फॉर माय ऑडियंस आई कैन एक्सप्लेन देम अगेन. प्री एक्शन प्रोटोकॉल इज दैट व्हेन यू हैव टू गो टू द कोर्ट जाने से पहले यू ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू बिटवीन द पार्टीज. सो यू ट्राई टू अडॉप्ट एनी ऑफ द मेथड्स ऑफ एडीआर और उसको आप रिजॉल्व करते हैं और वो जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी होती है उसके बाद आप कोर्ट को वो जाके सबमिट करते हैं. इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि आपने पहले खुद से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है तो आपका केस एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज आपका केस नहीं एक्सेप्ट होता. अब पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की कोई प्रोविजन मैंडेटरी है ही नहीं लोगों के लिए. सो दे पुट इट ऑन द पार्टीज कि इफ यू वुड लाइक टू मीडिएट. अभी हमारे पास 2017 इस्लामाबाद में एडीआर का भी एक्ट आया है, उसके अंदर भी उन्होंने पार्टीज को डिस्क्रेशन दी, उनके ऊपर लाजिम नहीं किया. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अभी जो लोअर जुडिशरी है खास तौर पे उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने में. लेकिन सबसे अच्छी चीज जो दैट आई कैन अपडेट माय व्यूअर्स, वो इस्लामाबाद में ये होना शुरू हुई है कि नाउ दे हैव प्रिपेयर्ड दिस मीडिएशन फॉर्म. If you attach an application of mediation with that form and submit to the honorable judge of the tribunal, वो उसी वक्त दूसरी पार्टी से पूछेगा कि अगर आप मीडिएट करना चाहते हैं तो साइन दिस डॉक्यूमेंट एंड आई विल रिफर दिस केस टू वन ऑफ द एग्रीडेटेड मीडिएटर ऑफ द मीडिएशन सेंटर इन इस्लामाबाद. सिमिलरली पंजाब के अंदर भी ये 2017 के अंदर ये एक्ट आ चुका है लेकिन उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई. इन 2019 आई फाइल्ड द रिट पिटिशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एक्ट और उसके बाद जो अभी तक उसमें जो प्रोग्रेस है वो ये है कि जज ने ऑर्डर किया कि उसके अंडर मीडिएशन 25 सेंटर्स बनने हैं अक्रॉस पंजाब जो कि अभी भी ऑपरेशनल नहीं हुए हैं. तो जब ये अवेयरनेस कैंपेन चलेगी, सेंटर्स बनेंगे, वहां पर एक गुड वॉल्यूम में डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे तो ही मेरे ख्याल से ये जो मैकेनिज्म है ये पॉपुलर होगा. जस्ट वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू अपडेट टू द व्यूअर्स कि रिसेंटली पिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस जवाद हसन ने एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दी है जिसमें आई वाज लकी इनफ टू असिस्ट हिम. एक 40 इयर्स ओल्ड मोरगा वैली के नाम से दैट यू कैन सर्च एंड इफ यू वांट आई कैन आल्सो शेयर द जजमेंट इन द ग्रुप. 40 इयर्स पुराना डिस्प्यूट था लैंड का
और मीडिएशन के लिए उसको कोर्ट डायरेक्टेड मीडिएशन, अब ये पाकिस्तान के अंदर लोगों को अब इस कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमने जज को केस फाइल किया तो जज ऑर्डर करेगा। लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस डॉक्ट्राइन के अंदर, जज पार्टीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अगर फैसला किया तो वो वन साइडेड होगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जाओ वापस बैठो टेबल पे, प्रपोजल्स बना के अपने लिए कोई हल ले आओ, जो वो सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा उसको मैं ऑर्डर बनाऊंगा अपना, और उससे कोई फिर वॉयलेट करेगा तो दे आर गोइंग टू कम बैक टू मी एंड दे विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और आप उसकी फिर अपील कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान पिंडी के अंदर जो सबसे पुरानी फाइल थी लाहौर हाई कोर्ट बेंच की, वो केस रिजॉल्व हुआ। इसीलिए आई पर्सनली बिलीव कि जो हमारे इस तरह के कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं जिनमें पार्टीज बैठती हैं जब, तो इतने लंबे गैप के बाद वो खुद भी सोचती हैं कि इट इज इन आवर एडवांटेज टू रिजॉल्व दिस इशू। और जब वो बैठती हैं तो उनको समझ आती है कि शायद हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, कोई मीडिएट नहीं कर रहा था, कोई प्रपोजल्स नहीं हमें दे रहा था, तो वो चीज वहीं स्टेगनेंट थी, और शायद लिटिगेशन चले तो हो सकता है हमें अगले 20 साल भी वेट करना पड़े। सो दे टेंड टू रिजॉल्व देयर इशू देन एंड देयर, which is very good for the image of judiciary in Pakistan, because this is how international ranking and even local ranking में भी हमारी जुडिशरी इम्प्रूव, नंबर इम्प्रूव करेगा, और केसेस की लिस्ट भी कम होगी, ताकि लिटिगेंट्स जो हैं उनके लिए आसानियां पैदा हो, बिकॉज दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस होल मैकेनिज्म। Right, sir. Sir Ali, what are the recent developments concerning out of the court dispute resolution in intellectual property cases? Like, जी like जी sir has already explained that the judges are leaning towards this out of the court settlement. तो आईपी से related इसके अंदर क्या क्या developments हैं, if you could जी tell? देखिए, पाकिस्तान सबसे पहले तो आप समझें कि इट्स अ लिटिगेशियस सोसाइटी, और आप ये भी समझें कि आप हर चीज़ का वकालत और जुडिशरी सिर्फ चीज़ें कोर्ट के कमरों से में नहीं होती। सबसे पहले तो आपने यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, और अगर कोई डिस्प्यूट आता है आपने उसको स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करना होता है। आप देखें, इंटरनेशनली जो पूरी दुनिया में ट्रेंड है ना, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटिगेशन है, मेरे व्यूअर्स ये चीज़ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इसमें हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। जो इंटरनेशनल ट्रेंड है ना, वो देखें, वो एक्चुअल जो कोर्ट की लिटिगेशन है उससे निकल के एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और ये होता क्या है, अनीक ने बहुत अच्छी चीजें इसकी बताई। एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, वेर मिस्टर नीक बिल्ट इट अप, वो ये है कि जी देखिए, एडीआर जो है ना, स्पेशलाइज किस्म की मीडिएशन होती है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जिस तरह के फॉर इंस्टेंस जो डब्ल्यूआईपीओ के अंडर जो होती हैं, वो स्पेशलाइज लोग होते हैं जो ये काम, जिनको पता होता है कि क्या टेक्निकलिटीज है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई सॉफ्टवेयर या लाइसेंसिंग का इशू आ रहा है, जिस तरह के आजकल मसीमो की और एप्पल वॉच का आपस में एक डिस्प्यूट यूएस में चल रहा है पैटेंट वायलेशन के हवाले से। सो वो देखें, अगर पाकिस्तान में कोई जुडिशल जज है या कोर्ट है, वो कॉपीराइट का अगर कोई सॉफ्टवेयर का बहुत ही हाइपर टेक्निकल इशू है, सो आप यू कांट बेसिकली रिलाय ऑन देम, और उनके साथ ज्यादती होगी कि जो हाइपर टेक्निकल फैक्चुअल चीजें हैं, जिस बंदे को कोर्ट को या जुडिशरी को, लॉयर्स को भी एक्चुअल इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं होती कि जी सॉफ्टवेयर बनता किस तरह और उसकी क्या इंट्रिकेसीज होती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एआई। तो जो पार्टीज हैं वो क्या करती हैं इंटरनेशनली, कि वो एक आर्बिट्रेशन का, जिस तरह नीक साहब ने भी बताया, कि क्लॉज रखती हैं। सबसे पहले तो जो आपकी अगर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस, अभी एक कादिर शाह साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स में कैसे ही होना चाहिए और हाउ शुड इट बी इनकॉर्पोरेटेड, और वो क्या इन्फोर्स होता भी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो जो आपकी पार्टीज हैं जो कि अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, फॉर इंस्टेंस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होती है कि जी आप हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, आप ये बिजनेस ऐसे करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर या जो हमने आपको सैप सैप प्रोवाइड किया हुआ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, वो आप इस नौयत के इस्तेमाल करेंगे और उनकी ब्रीच नहीं करेंगे। तो आप उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आता है, तो सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में एडीआर का क्लॉज बहुत स्मार्टली आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, इट इज अनदर डिबेट कि उसमें क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं, वो वी वोंट बोर यू विद ऑल दोज डिटेल्स। सो एक तो ये चीज है। सेकेंडली, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है कि एक्सपेडाइटेड एडीआर इज ऑलवेज डन वेरी एक्सपेडाइटेडली, और इसमें बेसिकली एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये प्राइवेट हेयरिंग्स होती हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आप कोई
डिफेंस प्रोडक्शन का कोई ऐसा प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी है, आपको उसकी लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर में या उस प्रोडक्ट में कोई इशू आ रहा है, सो ऑब्वियसली पार्टीज क्या चाहेंगी, पार्टीज चाहेंगी वो एक्सपेडाइटेड तरीके से हो, प्राइवेटली हो, ठीक है, और वो लेस एक्सपेंसिव हो, क्योंकि कोर्ट का जो प्रोसीजर है सारा कुछ ये थोड़ा सा कम्बरसम होता है। सो उस हवाले से ये पूरी दुनिया में तो देखा जाता है कि ऐसी चीजों में आप एडीआर क्लॉजेस रखते ही रखते हो, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान के, इसमें पाकिस्तान के कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी हैं, अगर मैं आपको उसका जिक्र करूं, आपने सवाल और भी ये मुझे वेरियस क्वेश्चंस इधर चैट में नजर आ रहे हैं। एक रिकरेंट सवाल है कि जी ऐसा ट्रेंड क्या है पाकिस्तान में, ऐसी क्या चीजें होती हैं, तो आपको अपने व्यूअर्स को बताने के लिए एक सबसे एक इंटरेस्टिंग मैं आपको केस बताता हूँ। पाकिस्तान का इंडिया के साथ चल रहा है ऑन द बासमती राइस इशू, ठीक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल, आप आर्बिट्रेशन ही इसको समझ लें। ये यूरोपियन यूनियन में हमने हमने ये चीज पेडल की हुई है। हुआ क्या कि इंडिया ने अपना जो बासमती की जो राइस का जो प्रोडक्शन है एरिया, उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया के वेस्टर्न इंडियन जो है पार्ट ऑफ इंडिया, पंजाब वाली साइड जो हमारे साथ बॉर्डर करता है, उन्होंने ये कहा कि जी ये बासमती तो हमारे इस एरिया में प्रोड्यूस होती है, तो ये और हिस्टोरिकली यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। सो जो बासमती राइस है ये राइट जियोग्राफिकली, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस वाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर एक रिलेटिवली एक रीसेंट राइट है। सो दे ट्राई टू रजिस्टर दैट इन देयर ओन नेम, और उससे होता क्या और हुआ क्या कि यूरोप में जितनी भी जो इंपोर्ट यूरोप में और इंटरनेशनली इंपोर्ट थी, वो फौकियत अगर बासमती राइस किसी ने बेचना है तो वो इंडियन बासमती राइस को जीआई मिल गई, ठीक है। और उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि इनिशियली ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक टेक्समती एंड राइस के नाम से एक वेरिएशन जो है, वो अमेरिकन एक कंपनी है टेक्सास में, उन्होंने उसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लेने की कोशिश की, तो इंडिया ने वहां जाके यूनाइटेड स्टेट्स में इसको चैलेंज किया कि भाई आप तो ये ले नहीं सकते, बासमती तो हिस्टोरिकली हमारे इलाके की प्रोडक्शन है। पाकिस्तान को ये चीज थोड़ी जरा लेट रियलाइज हुई, और अगेन जो हमारी ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने भी मेरे से गिलानी भाई सवाल पूछा था कि हाउ ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट के बाद हाउ इज द लोकल लॉ बीइंग फैशन। सो ट्रिप्स की ग्रीन जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है उसका आर्टिकल 21 या 22 है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जीआई जो इंडिकेशन की जो आपने एडवांटेजेस लेनी है, वो आप अपने मुल्क में सिर्फ तभी ले सकते हो जब आपके मुल्क में उसकी एवज एक लॉ रिफ्लेक्टिंग आपको प्रोटेक्शन दे। हमारे मुल्क में ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला कानून एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। ये शायद खाकान अब्बासी की जो लास्ट, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे लास्ट से लास्ट गवर्नमेंट में, उसमें ये चीजें टेबल हुई थी, बट ये बिल पास नहीं हुआ। सो 2021 में क्या हुआ कि जो हमारी लास्ट जो गवर्नमेंट थी, अर्स्टवाइल गवर्नमेंट, उसमें ये ना सिर्फ ये जीआई इंडिकेशन वाला कानून पैडल हुआ, और बल्कि हमने जाके यूरोप में इस चीज को, उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जीआई इंडिकेशन वाला जो राइट है, वो हमने उसको चैलेंज किया, और चैलेंज इस हद तक किया कि हमने उनको रोक दिया कि जो इंडिया है वो सिर्फ उसकी एक्सक्लूसिव राइट नहीं होना चाहिए ये बासमती राइस एक्सपोर्ट करने का। और मैं आपको इसके साथ ये भी बताता चलूं कि 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी बासमती राइस की, इट सरपास फॉर द फर्स्ट टाइम, इट सरपास दैट ऑफ इंडिया। और इसका इंटरनेशनल लॉबिंग से फायदा क्या हुआ, और इस केस का फायदा क्या हुआ कि अभी अगेन वो खत्म नहीं हुआ, केस चल रहा है, हमने उसमें ऑब्जेक्शंस फाइल कर दिए हुए हैं, उसकी भी हियरिंग होनी है। और उससे फायदा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो एक्सक्लूसिव अमेरिका का इंडिया का राइट था ऑन बासमती राइस, वो होल्ड हो गया। और बेसिकली पाकिस्तान जो है इसको एक बहुत ही फॉर्मल और इंटरनेशनल तरीके से ऑफिशियली अपना जो बासमती राइस है वो पूरी दुनिया में विद आर एक्सक्लूसिव राइट, इंटेलेक्चुअल राइट, वो आप यूज करते हुए हम भी इंटरनेशनली लाइक इंडिया बासमती राइस इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, राइस हमारा होता था, वो हम इंडिया एक्सपोर्ट करते थे या कहीं और एक्सपोर्ट करते थे, वो इंडियन कंपनीज अपना नाम बासमती राइस लगा के पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट कर रही थी, और हम उसको एज बासमती राइस ना एडवर्टाइज कर सकते थे ना इंटरनेशनली बेच सकते थे। सो इस चीज पे आजकल काफी काम हो रहा है, इस पे यूरोपियन कमीशन की कुछ आर्बिट्रेशंस भी हैं, प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। सो अब आप अगर चाहें तो आप वो फॉलो भी कर सकते हैं। उस पर आई गेस इस समर्स में मजीद आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी। सो आई एम फॉलोइंग दैट, जब वो उसकी कुछ अपडेट आएगी तो मैं अपने व्यूअर्स को वो अपडेट भी करूंगा। सो आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर द व्यूअर्स ओवर हियर। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir Anik, my next question is for you.
since you are the expert in ADR laws, what are the shortcomings in Pakistani laws when it comes to dispute resolution? And what reforms do you propose comparing the significance of ADR in the international law to that in Pakistan? And with how there are many areas which need to be reformed, but Today is if I be yeah. very precise, because I can see Raza Muhammad's question as well, I would like to address as well. Uh, but एक चीज जो है वो जो मैंने already explain की है, that is pre-action protocol, that you Yes. put cost on the parties and you tell them that if you do not try to resolve this dispute through the mechanism of dispute resolution, your case will not be filed in the court. और यही एक चीज है जो पार्टीज को रिस्ट्रिक्ट करेगी कि आप प्रॉपर तरीके से बैठ के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये उन्हीं का ही डिस्प्यूट है, और ये रिजॉल्व अगर होता है तो उन्हीं को ही इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, और फिर अल्टीमेटली इकोनॉमी को भी होगा जब नंबर ऐड होते हैं. नाउ एड्रेसिंग रजा मोहम्मद क्वेश्चन, दैट इज सर व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ बीइंग अ मीडिएटर. सो वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर आप लॉयर नहीं भी हैं तो आप फिर भी मीडिएटर बन सकते हैं. मीडिएटर एक कोई भी इंसान हो सकता है, एज लॉन्ग एज ही नोज कि उसने मीडिएट कैसे करना है मैटर को. वो फैमिली लॉ के इश्यूज को भी मीडिएट कर सकता है, वो आईपीओ के लॉज के से रिलेटेड भी कर सकता है, लैंड से रिलेटेड भी कर सकता है. जो मैंने मुर्गा वैली वाला आपको बताया केस, वो लैंड से रिलेटेड था. बल्कि एक केस जो मिस्टर अली और मैंने इकट्ठे मिलकर काम किया था, उसमें फैमिली लॉ से रिलेटेड था, जिसमें हमने हस्बैंड और वाइफ की फैमिली और उनकी साइड के लोगों के दरमियान मीडिएट किए थे इश्यूज विच वाज आल्सो रिलेटेड टू जो उनके मैट्रिमोनियल इश्यूज थे एज वेल एज प्रॉपर्टी इश्यूज. तो उसमें भी वो होता है. नाउ हाउ यू बिकम अ मीडिएटर. So there are different centers in Pakistan. मीडिएटर एसोसिएशंस हैं जिनके कोर्सेज हैं कुछ. अगर आप वो कोर्सेज, उनके आवर्स हैं, क्रेडिट आवर्स हैं, अगर आप वो कोर्सेज उनके पूरे करते हैं, सो दे मेक यू अ सर्टिफाइड मीडिएटर. अब स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देखें जो एक्ट है, या जो हमारा पंजाब में भी एक्ट है, तो वो बताता है कि जो हमारे मीडिएशन सेंटर्स बनेंगे, वो मीडिएशन सेंटर्स ऑफर करेंगे आपको कोर्सेज. और वो कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं तो जो उनकी लिस्ट ऑफ मीडिएटर्स है उनमें आप इंक्लूड कर दिए जाएंगे. और अगर कोई पार्टी मीडिएशन की एप्लीकेशन देती है अपने केस के अंदर अदालत में, तो वो अदालत सेंटर में भेजेगी, सेंटर उनको लिस्ट देगी, और उस लिस्ट में से वो किसी भी मीडिएटर को चूज कर सकते हैं. सो बट इसका जो इस वक्त सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रही है लोकल लॉयर को अंडरस्टैंड करने में इस कॉन्सेप्ट को, कि वो ये कह रहे हैं कि ये दिस इज एन एड ऑन प्रोसेस, कि पहले आप ये करेंगे और अगर ये नहीं होता तो आप फिर लिटिगेशन करेंगे. हाउएवर द कॉन्सेप्ट इज कि एटलीस्ट यू ट्राई, और अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है. सो दिस इज अनदर बिजनेस फॉर लॉयर्स. जो भी लोग इस फील्ड में अभी आ रहे हैं या अभी लॉ स्कूल में जा रहे हैं, एंड इफ दे गेट अ चांस टू study arbitration, mediation, or ADR as a whole, I think you should definitely do that, because mark my words, this is the future, because people are, trust me, fed up of the court और जो लॉन्ग लिटिगेशन ट्रायल सिस्टम है. ये पूरी दुनिया जो सी है इसको अब रिजेक्ट कर दिया, एंड दे आर अडॉप्टिंग एडीआर. Right, sir. Sir, so my last question is कि हमारा CPC का section 89 that promotes the referral of any dispute to arbitration. उसके अलावा हमारा जो arbitration act है 1940 वो भी है. लेकिन इसके अलावा do you think there is a need for every legislation जिसमें कोई भी dispute possibly आ सकता है कि उसके अंदर भी इस को अलग से incorporate किया जा सके, या these two legislations are enough कि इसमें सारे disputes cover हो जाएं? Ahmed, this question is very popular among the practitioners of this area of law. और बल्कि अगर आप देखें तो आपको लिंक्डइन पे बहुत सारी इससे रिलेटेड डिबेट भी मिल जाएगी. Excellent. करंटली इस सारी डिबेट के बाद अब प्रोग्रेस ये है कि जो आपका आर्बिट्रेशन एक्ट है उसको रिव्यू करना शुरू कर दिया, उसकी प्रपोजल्स आ रही हैं. एंड मिस्टर फैसल नकवी हु इज अ वेरी सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर और Yeah. आर्बिट्रेशन में बहुत एक्टिवली वो काम भी करते हैं,
he's working on that. So if anyone would like to know कि अभी वो suggestions कहाँ तक पहुंची हैं या वो draft जो है वो कितना improve हो गया है, I think you can go onto his LinkedIn account and you can see that. और जब वो finalize हो जाएगा तो वो मेरे ख्याल से Ministry of Law की website पे भी आप देख सकेंगे उसको. उसमें पब्लिक एट लार्ज के कंसर्न्स वाली स्टेज पे है, Right. कमेंट्स वाली स्टेज पे है, बिल्कुल। There's another question in the chat box. Mediation की drafting कैसे होती है? Sir, Okay. any So yeah. So when you do this course, so they tell you कि आपने mediation के process को करना कैसे है. लेकिन drafting का part आपका तब आएगा when you're drafting proposals for the party. So, and secondly, when you are drafting the settlement agreement. So these are the two main documents you will have to learn to draft. If you would like to see the draft of it, then I believe you will have to message me and I'll just try to find one for you. So if anyone else has any questions, you can ask them in the group. We are running out of time. And concluding today's session, I would like to thank both of the speakers for taking out time from their busy schedules and giving us great insight on the topic. And we will see all of you in the next session. Have a great weekend, all of you. Thank Thank you you. very much, Evan. And thank you everyone for attending this session. I hope that you enjoyed it. And we wish you good luck if you would like to become one of the mediators or arbitrators who are practicing in Pakistan or abroad. So good luck and thank you very much for joining again. Thank you, Ji. Thank you, participants, for sharing this digital space with us. I'm so very overwhelmed with the participation and the quality of discussion we had over here. Looking forward to discuss many other things with you. Thank you, Ji.